سیریز کی شروعات ہائن نامی آدمی سے ہوتی ہے جو سون ینگ کمپنی کے کرپٹ چیئرمین ینگ کا رائٹ ہینڈ ہے، جس کے پیچھے یانگ نامی اینٹی کرپشن لائر ہاتھ دھو کے پڑی ہے۔ ینگ کی فیملی ہائن کو کسی نوکر کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، یہاں تک کہ کمپنی میں بھی کوئی اسے خاص اہمیت نہیں دیتا کیونکہ ہائن کی ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے، صرف ایک شن نامی نیا ورکر ہے۔ ہائن کو تھوڑی بہت عزت دے دیتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی سے پہلے ینگ کا بیٹا جن کمپنی آ کے پراپرٹی کے لیے ینگ سے لڑتا ہے، جس پر ینگ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ جن اپنے فادر کو دیکھنے کے بجائے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پیچھے سے بیچارہ ہائن ہی ینگ کو سنبھالتا ہے۔ اب ینگ کی طبیعت خراب ہونے پر جن نے ہی وقتی طور پہ چیئرمین بننا تھا، جس پر ہائن اسے لے آتا ہے۔ اینٹی کرپشن ٹیم کے وارنٹ لے کے آنے سے پہلے ہائن سارے ثبوت غائب کر دیتا ہے۔ تبھی شن کو سون ینگ کے نیچے چھپی ایک چھوٹی کمپنی کی فائل ملتی ہے جو وہ ہائن کو دیتا ہے۔ ہائن پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اگر اس کمپنی کی خبر کسی کو ملی تو ان پر کرپشن کے اور کیسز بن جائیں گے، اس لیے ہائن یہ فائل چیئرمین کے اسسٹنٹ کم کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں سے کم کے فائل کو ختم کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کم پہلے سے یہ سب جانتا تھا، پر وہ یہ سب جن سے چھپا کر خود کمپنی سے پیسے لینا چاہتا ہے۔ ہائن یہاں اپنے اصول کے خلاف جا کر جن کو کمپنی کا بتا دیتا ہے، جس پر جن کم کو نوکری سے نکال دیتا ہے، پر ہائن کو پروموشن دیتے ہوئے اسے اس ملک جانے کا کہتا ہے جہاں یہ کمپنی موجود ہے۔ ہائن وہاں جا کر کمپنی کے پیسے نکال بھی لیتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ جن کی کزن اس کے خلاف چال چل رہی ہے۔ کچھ گنڈے ہائن کو بے ہوش کرتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ہوش میں آنے پر ہائن سامنے شن کو گنڈوں کے ساتھ کھڑا دیکھتا ہے۔ شن ہائن سے سیکھی باتوں پر ترقی کے چکر میں چیئرمین کی فیملی کے کسی شخص کے حکم پر ہائن کو مارنے آیا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہائن کو گولی مار دیتا ہے۔ ہائن اپنے آپ کو ماؤنٹین سے گرتا محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ ایک گاڑی میں چیئرمین کے بھائی اور اس کے بیوی بچے کے ساتھ موجود تھا، جہاں ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ہائن بھی ان کا بیٹا ہے۔ ہائن اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ڈو جان ہے، اور ساتھ ہی اسے بلڈنگ دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے بہت پیچھے دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہ بات تب کنفرم ہو جاتی ہے جب وہ گاڑی سے نکل کر باقی فیملی کے لوگوں سے ملتا ہے اور کمپنی کے فاؤنڈر کول سے ملتا ہے جو اس کے گرینڈ پا ہے۔ ہائن جو ڈو جان ہے وہ کول کے اس بیٹے یون کا بیٹا ہے جس کو کول نے پسند کی شادی کرنے پر گھر سے نکال دیا تھا، اور اب یون اپنی فیملی کے ساتھ 10 سال بعد اپنی موم کے اسرار پہ کول کی برتھ ڈے پارٹی میں آیا ہے۔ ہائن کے پاس اب ڈو جان کی شکل میں ایک اور موقع اور زندگی تھی کہ وہ سب ٹھیک کر لے، اس لیے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کو 1987 سے آگے فیوچر کے بارے میں کیا کیا یاد ہے، اور وہ سب یاد کر کے کول کے گھر جاتا ہے تاکہ وہ اسے ویسٹ ٹوٹنے کی معافی مانگ سکے۔ ساتھ ہی وہ کول کو پریزیڈنٹ کے لیے شروع ہونے والے الیکشن کے بارے میں کچھ ایسی معلومات دیتا ہے جس پہ تو پہلے سب یقین نہ کرتے ہوئے اسے نکال دیتے ہیں، لیکن سب سچ ہونے پر کول ڈو جان کو واپس بلا لیتا ہے۔ کول اس سے ایسا سوال کرتا ہے جس کا اگر اسے جواب مل جائے تو وہ اپنا بڑا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کول کا اصل میں ایک بزنس خسارے میں جا رہا تھا جس کے لیے اسے آئیڈیاز چاہیے تھے۔ ڈو جان اس مسئلے کا بھی حل نکال لیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے یاد آتا ہے کہ کول بزنس ٹرپ سے واپسی پر جس جہاز پر سوار ہوگا اس پر دہشت گردوں نے بم لگانا ہے۔ ڈو جان بہت کوشش کرتا ہے کہ کول اس فلائٹ پر نہ جائے، لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک آخری کوشش کرتے ہوئے وہ کول کے اسسٹنٹ کو کال کر کے اس کے لیے نوٹ دیتا ہے، پر پھر جہاز کی خبر آنے پر ڈو جان سمجھ جاتا ہے کہ وہ کول کو بچا نہیں سکا، لیکن کول ٹھیک ٹھاک واپس آ جاتا ہے کیونکہ اس نے ڈو جان کا نوٹ پڑھ لیا تھا، جس وجہ سے وہ جہاز پہ سوار ہوا ہی نہیں۔ آخر کار ڈو جان کول کے دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کول اسے اور اس کی فیملی کو ایکسپٹ کرتے سب کے سامنے اناؤنس بھی کر دیتا ہے، جو سن کے سب زیادہ خوش نظر نہیں آتے، جو دیکھ کر ڈو جان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ادھر موجود لوگوں میں سے کسی نے اسے مروایا تھا۔ دن گزرتے جاتے ہیں اور ڈو جان لا کالج میں ایڈمیشن لے لیتا ہے، ساتھ ہی اس کی کول سے لی زمین پر اپارٹمنٹس بنتے ہیں جس سے زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور کول اس کی کمائی ڈو جان کو دے دیتا ہے، جس پر کول کے بیٹے بیٹی خوش نہیں ہوتے، لیکن ڈو جان اس کی فکر کے بغیر یون اور اپنے بھائی کے ساتھ امریکہ جاتا ہے جہاں وہ یون کی فیمس ہونے والی موویز کا پتہ ہونے پر انہی میں انویسٹ کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس کی میسن نامی آدمی سے دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ ڈو جان کالج جاتا ہے جہاں اسے اپنے ڈرائیور کے اپنے اوپر نظر رکھنے کا پتہ چلتا ہے، لیکن اسے فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نظر رکھے جانے کے باوجود وہ کر دیتا ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اصل میں وہ میسن کو مہرا بنا کے آہستہ آہستہ کول کے بزنس کو خراب کر رہا ہے کیونکہ وہ ان کی کمپنی سون ینگ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ڈو جان کی پلاننگ تب سمجھ آتی ہے جب کول ڈو جان اور میسن کے ساتھ تصویریں دیکھ کے ڈو جان پر شک کرتا ہے، جس
जिस वजह से कोल डुजॉन से भी उसकी अमेरिका में की इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन डुजॉन जब सिर्फ मूवीज का बताता है तो उस पर शक बढ़ता है और ये यकीन में तब बदलता है जब उन्हें मेसन और डुजॉन की बातों की रिकॉर्डिंग मिलती है। कोल मेसन को मिलने के लिए बुलाता है तो उसे पता चलता है कि डुजॉन ने अमेज़न में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। साथ ही मेसन कोल और यंग के सामने ऐसी बात कहता है कि डुजॉन को यंग के छोटे भाई डोंग पर शक जाता है, क्योंकि उनकी दुश्मन कंपनी पैसे कम होने की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब उनके पास पैसे आ गए हैं जो कि डोंग की तरफ से दिए गए हैं। कोल सब जानते हुए भी कुछ नहीं करता ताकि यंग की काबिलियत का पता चल सके और यंग खुद को प्रूफ करता लोन लेकर ऑफर बढ़ाता हुआ कंपनी खरीद लेता है। लेकिन अंदर असल कहानी ये है कि ये सब किया हुआ डुजॉन का है, जो दोनों भाइयों को लड़वा के खुद सोनिया कंपनी को हासिल करना चाहता है। डुजॉन अपने प्लान में कामयाब होने के बाद अपने फ्यूचर जानने को इस्तेमाल करते हुए सोनिया हासिल करने के लिए दूसरा कदम उठाता है। दरअसल उस साल IMF क्राइसिस आता है जो बहुत सी कंपनीज का बैंकरप्ट होने का बायस बनती है। डुजॉन ने सबके बारे में जानते हुए पहले ही अपने पैसे डॉलर्स में बदल चुका था, जिस वजह से सबके वैसे जाने पर भी अमीर था और मेसन से पार्टनरशिप करके अपनी कंपनी को मिरेकल का नाम देते हुए एक बैंकरप्ट होती कंपनी आर्जिन मोटर्स को खरीदने का मशवरा दिया था, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि उसकी पुरानी जिंदगी वाले डैड उस कंपनी में काम करते थे, लेकिन कंपनी के बंद होने पर उन्हें निकाल दिया था और उन्हें कहीं और जॉब भी नहीं मिल रही थी। इन हालात की वजह से उसकी मदर की उसकी आंखों के सामने मौत हुई थी। डुजॉन ये कंपनी खरीदना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि कोल भी सोनियांग मोटर्स को बचाने के लिए ये भी कंपनी खरीदना चाहेगा, इसलिए वो मेसन को आर्जिन के CEO से डील करने भेजता है, जो हो भी जाती है। लेकिन जिस दिन आर्जिन मेसन को मिलने लगती है उसी दिन कोल मेसन की कंपनी के खिलाफ अपने दोस्त के न्यूज़पेपर की मदद से गलत न्यूज छपवा देता है। उसी दोस्त जिसकी बेटी हाइन से वो जिनका रिश्ता करने वाला है। अब इस सब की वजह से मुल्क का प्रेसिडेंट ही कंपनी मेसन को देने के लिए तैयार नहीं होता। डुजॉन मेसन को अपना प्लान बता के कोल के पास भेजता है, जहाँ मेसन न सिर्फ कोल को आर्जिन मोटर्स को खरीदने के पैसे देने को तैयार था, बल्कि लोन खत्म करने में मदद की भी ऑफर करता है, पर उसके बदले कोल की कंपनी के कुछ शेयर्स उसके नाम करने का कहता है। कोल को ये घाटे का सौदा नहीं लगता, इसलिए वो मेसन को शेयर्स दे देता है। साथ ही मेसन की डील के मुताबिक किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालता, जिस पर डुजॉन बहुत खुश अपने पुराने डैड को देखने जाता है कि उसे पता चलता है कि पिछली जिंदगी में हुए वाकयात न होने के बावजूद उसकी मदर की डेथ हो गई है। डुजॉन को पता चलता है कि उसकी मदर ने अपनी जान खुद ली थी और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने सोनियांग के जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे उस कंपनी को कोल ने जानबूझ के खत्म कर दिया था, ताकि बड़े इन्वेस्टर्स पर जोर न आए और सोनियांग की मेन कंपनी आराम से हुकूमत से बची चलती रहे। इससे उसने आम लोगों के पैसे को डुबोना बेहतर समझा, जो सुनकर पहले तो डुजॉन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो समझने लग जाता है कि उसकी फैमिली में सब अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन गरीबों की फिक्र करने वाले नहीं, बल्कि वो टिपिकल बिजनेसमैन की तरह अपना फायदा सोचते हैं। डुजॉन यही देखते हुए सियोल में डिजिटल मीडिया सिटी सेट करने का सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में पूरी दुनिया में कोरिया का कल्चर बहुत मशहूर होगा, जिसके लिए ये जरूरी होगा। और डुजॉन को ये भी पता है कि कोल जिन से, जो कि खुद ही सोनिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया है, उसके जरिए ये बनाने की जमीन खरीदना चाहता है। इससे डुजॉन कोल के दामाद जॉय को इस्तेमाल करता उसे कोल की मुखालफत के बावजूद मेयर बनवाता है और फिर उसी के जरिए अपनी नई खरीदी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जमीन हासिल कर लेता है। कोल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इससे वो अपने जानने वाले लॉयर्स को इस्तेमाल करता डुजॉन के मिरेकल इन्वेस्टमेंट के ऑफिस में झूठे इल्जाम की वजह से सर्च करवाता है, ताकि जोर डालकर वो कंपनी के असल मालिक यानी डुजॉन से मिल सके। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं होती कि डुजॉन डरे बगैर उसके सामने आकर सच बता देगा। डुजॉन उसे समझाता है कि वो सोनिया खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि कोल के बड़े बेटे को एक कंपनी देने के असूल की वजह से डुजॉन की पिछली जिंदगी में उसने हाइन बने कंपनी को डूबते देखा था। इसे वो कोल की मेहनत से बनी कंपनी को खसारे में ना जाता देखकर कोल का असूल तोड़कर सोनिया हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो कोल की धमकियों को नजरअंदाज किए ऐसा ब्लैकमेल करता है कि कोल सिर्फ गुस्सा करते ही रह जाता है। कोल फिर भी हार ना मानते हुए यून के पास जाता है और इसे खसारे में जाती कंपनीज देता है, क्योंकि जब कोल ने यून को फैमिली से निकाला था तब उसने ये भी कहा था कि यून का कोई भी बेटा जायदाद हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अब उन्हें पीछे हटाने के लिए ये करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि उसके ख्याल से यून डुजॉन को कंपनी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोल सिर्फ यहाँ ही नहीं रुकता, बल्कि वो जिन को अपना बदला लेने के लिए अपनी जगह खड़ा कर देता है, जिस पर जिन उन मीडिया कंपनीज को रोक देता है
जो मिरेकल के साथ डीएमसी में काम करने वाली थी, जिससे मेसन और डिजॉन को बहुत परेशानी होती है। वो फिर भी हिम्मत ना हारते हुए हल ढूंढते हुए गेम और कार्टून बनाने वाली कंपनी से राब्ता करते हैं, जो सब मान जाते हैं। लेकिन उनकी डिजॉन से मिलने की शर्त होती है, जो पूरा करते हुए डिजॉन उनसे मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि इसके पीछे हाइन थी, जिनके पहले ही प्रोजेक्ट के डूब जाने की वजह से उसे शादी से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो डिजॉन के मिरेकल का मालिक होने के बारे में जानते हुए अब डिजॉन से शादी करना चाहती है। लेकिन डिजॉन उसे साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद वो यून से मिलता है, जो अपने डैड के खिलाफ जाकर अपने बेटे को सपोर्ट करने को तैयार था। डिजॉन सपोर्ट मिलने पर खुश तो होता है, लेकिन वो अपना डीएमसी का ख्वाब पूरा ना होता देखकर परेशान था, क्योंकि उसने हाइन की शादी की ऑफर ठुकराई थी तो उसकी मदद भी ठुकराई गई थी, इसलिए उसे अब कुछ और हल ढूंढना था। डिजॉन अपनी अक्लमंदी से उसका हल ढूंढ लेता है, जिसके लिए वो सोनियांग के दुश्मन कंपनी के चेयरमैन से मिलने जाता है, जिन्हें लालच देकर उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग के चैनल्स खरीदने का कहता है, जो वो डीएमसी में शामिल करेगा, और चेयरमैन उसकी मान जाते हैं। जिनकी अपनी शादी में हाइन से की बातों से पता चलता है कि उसे हाइन के डिजॉन को पसंद करने के बारे में पता था, और वो इसी बात की वजह से उसे बेइज्जत करता है। लेकिन हाइन शादी तोड़ के जाने के बजाय अपने लालच की वजह से जिन से शादी कर लेती है, जिसके बाद ली जाने वाली फोटो के दौरान डिजॉन आता है और कोल को ऐसी बात कहता है जिस पर वो सोच में पड़ जाता है। कोल सोचों में गुम होता है कि उसे डेयंग के चेयरमैन के आने का बताया जाता है, जो उसे डिजॉन की अक्लमंदी का बताते हुए कहता है कि डिजॉन बिल्कुल उसकी यानी कोल की तरह है, जो सुनकर कोल हैरान होता किसी गहरी सोच में नजर आता है। इधर जिनको पता चलता है कि वो जो सोच रहा था कि डीएमसी का प्रोजेक्ट उसका हो गया है, उसे पता चलता है कि एक बार फिर डिजॉन ने बाजी पलटी हुई है, जिस पर वो गुस्सा होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जिन डिनर के दौरान अपने आप को नॉर्मल कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोल उसे शादी की गिफ्ट में अभिषेक देंगे। लेकिन कोल सबके तवक्को के बरअक्स वो जिन के ट्रांसफर का नोटिस देता है और सबके सामने ऐलान करता है कि वो अपने बड़े बेटे को सब देने वाला असूल खत्म करते हुए वो अब सबको मौका दे रहा है कि वो अपनी सलाहियत दिखाकर सोनियांग हासिल कर ले। कोल वहाँ से चला जाता है और इसके पीछे से जिन ये समझ जाता है कि कोल ये सब डिजॉन की वजह से कर रहा है, इससे वो गुस्से में उसे हिट करने चाहता है। लेकिन हाइन बेहोश होने का ड्रामा करते हुए सबकी अटेंशन हटवा देती है। इस सब के बाद सबको कोल जायदाद से कुछ कंपनीज देता है ताकि वो उन्हें संभाल कर अपनी सलाहियत दिखाएं। लेकिन वो सब ये जानकर कि डिजॉन की वजह से कोल ने अपना असूल बदला है, इससे वो उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसमें वो मेसन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। डिजॉन उनके बारे में पहले ही जानते हुए ऐसा जाल डालता है कि आहिस्ता आहिस्ता तीनों बहन भाई उसमें गिरते जाते हैं और अपने पैसे हारते जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।